ઓલરાઈટ, ચાલો. સો ચેપ્ટર નંબર 1 મેં લઈ લીધું છે. ચેપ્ટર નંબર 2 તમારા સેન્ટરમાંથી થઈ ગયું છે? નથી થયું? ઓકે. મોડાસા નથી થયું. અમદાવાદ થઈ ગયું છે. ઓકે. ભુજ નથી થયું. ચેપ્ટર નંબર 3 મોડાસા નહીં, ભુજ નહીં, અમદાવાદ થઈ ગયું. ઓકે, ઠીક છે, નો પ્રોબ્લેમ. હવે અત્યારે આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 થી શરૂઆત કરીએ છીએ. 2 અને 3 ને અત્યારે સ્કીપ કરીએ. એટ ધી એન્ડ હું તમને કરાવી દઈશ છેલ્લે. બરાબર છે? ફાઇન. સો જીનેટિક્સ ચેપ્ટર નંબર 4 અને 5 2 ચેપ્ટર્સ છે એમના. ફાઇન. એન્ડ હિન્દી ઇંગ્લિશ વાળા છો કે ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી વાળા છો? ઇંગ્લિશ. એમ નહીં, ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી કે ઇંગ્લિશ અને હિન્દી? ઇંગ્લિશ એન્ડ હિન્દી. હિન્દી. ઓકે. હા, એટલે શું મને વર્ડ વાપરવાની ખબર પડે. ઓલરાઈટ. સો principle of inheritance and variation. Okay. Before we move deep into the subject, right, we need to have a few basic knowledge about our unit. Unit number, it is 7 and it is genetics. As per the definition of genetics, it is a study of heredity, that is inheritance, and variation. So genetics ni, if we talk about, it is a study of heredity. Now what do you mean by heredity? Heredity includes these two phenomena, inheritance and variation. So your topic is running around heredity actually. So we have heredity and it includes inheritance and variation. So that's what the first thing you should know. Actual what is meaning of heredity, actual what is meaning of inheritance, and actual meaning of the variation. Now let us focus first on the heredity. Now it is applicable to the flow of characters. It is the flow of the character from one generation to the other. It's this process, forwarding the traits, forwarding the characters from one generation to the next generation. So the flow of those characters is heredity. And there are two parameters. One, inheritance. Flow is inheritance. And whatsoever changes happening during this flow is variation. So flow of character is inheritance and changes in the character, it is called the variation.
Okay, why we are thinking about character? Why? It is the concern which is definitely related to this word. Biology is study of life in the form of living organisms. So study of living organism is biology. Now what of living organism? It is the characteristic feature. Characteristic features of living organism. So it is a study. Biology में वही करना है. That's the study what we are doing there. Okay. Now with respect to this point of view, you are given two types of the characteristic features in standard 11. Two types of characteristic features. One is structural characters. The other is functional characters. You might be wondering right now what I am writing here and what does it mean or what can it mean. I hope you are wondering with this. Okay, say for example, you are the living organism. You have one characteristic feature called one structure of your eye. You have got eye, that is a particular structure. So that is a structural character. You see with that eye is the functional character. So it has two characters. एक एनु स्ट्रक्चर, उसका खुद का स्ट्रक्चर है ना, ये टिपिकल होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होती है, कलर होता है, विजन होता है, राइट? सो कलर इज स्ट्रक्चरल कैरेक्टर, शेप, साइज, दैट इज स्ट्रक्चरल कैरेक्टर. विजन सबका होता है, काली है तो भी वही देखेगी और ब्राउन है तो भी वही देखेगी, देखना तो सेम टू सेम है, दैट इज फंक्शनल कैरेक्टर. So anything what you see into the living world has two kind of characteristic features: structural characters and functional characters. You must be surprised to know कि आपको कैसे हड़वेक से समझाया गया है इसको. दो टाइप के स्ट्रक्चरल कैरेक्टर को ऑलरेडी आपकी 11th की टेक्स्ट बुक के अंदर समझाया गया है. दो टाइप के स्ट्रक्चरल कैरेक्टर को, एक को मैंने बोला है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. आई होप यू नो दिस वर्ड, है ना, दैट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. एक है, वो है एनाटॉमी. And anatomy means internal arrangement, structure. Chapter number 6, chapter number 5, botany, chapter number 7, zoology. I hope I am very clear with this, right? Fine. Functional character is this. Physiology. Chapter number 11, 12, 13, botany.
Chapter number 7, zoology. Chapter number 14, 15, 16, 17, 18, 19, human physiology. So these are the subjects with this point of view has been explained in standard 11. So they were showing all the characteristic features, though it is morphological characteristic feature, though it is anatomical characteristic features, though it is physiological characteristic features. So physiological functions. Fine. So you are supposed to write along with whensoever I am explaining something, you can copy whatsoever I am writing here. So it will be easier for you to remember later on whensoever you are reading. है ना? So आपके लिए अच्छा रहेगा वो अगर आप कॉपी करते हो. So morphology, anatomy, physiology, all are types of characteristic features. So biology basically is studying the characteristic features, nothing else. तो हमें सेंटर में किसको रखना है स्टडी में? कैरेक्टर्स को. अब ये कैरेक्टर ही तो हमें लिविंग बनाते हैं ना. ये कैरेक्टर हमारे अंदर है तो हम लिविंग है, कैरेक्टर नहीं है तो लिविंग नहीं है. सिंपल सी बात है. तो हमारे अंदर वो चीज जो हमें जिंदा बनाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन देती है, वो हमें मिली कहां से? पेरेंट्स में से ऑफ कोर्स. सो सेम काइंड ऑफ फीचर्स आवर पेरेंट्स आर हैविंग, same kind of feature our forefathers are having. So it is getting forwarded. So that's why we are actually adhere or we are stick to characteristic feature. So now we are into how these characters are getting forwarded from one generation to the other. तब वो कैरेक्टर की फॉरवर्डिंग प्रोसेस को एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में या एक सेल में से दूसरे सेल में कैसे वो मूव ऑन होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन जेनेटिक्स. आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस, है ना? ओके. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू. लुक, वी आर राइट नाउ नॉट इन टू द सब्जेक्ट प्रॉपरली. लेट मी क्लेरिफाई फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स first. There are many terminologies which are going to be encountered, जो आएगी, कभी भी आ सकती है. अगर उसका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप क्या समझोगे उसके बारे में? सो मैं क्या कर रहा हूं उसको, मैं आपको पहले वो सब बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उसके बारे में क्लेरिफाई कर देता हूं. उसके बाद में जब हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन, यू विल फील रिलैक्स्ड और इजी विद रिस्पेक्ट टू द अंडरस्टैंडिंग लेवल. सो मजा आएगा आपको. थोड़ा मैं टाइम लूंगा शायद एक आध लेक्चर का इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करने में, बट इट विल मेक योर स्टडी स्मूथ बाय द टाइम. आई मीन फाइन. सो से फॉर एग्जांपल हम हमारी ही बात करते हैं. लेट अस बिगिन विथ आवर सेल्फ ह्यूमंस, which are very complex or advanced, well developed kind of organism. उसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो we are made up of organ system, organ systems are made up of organs which are further made up of tissues, and tissues are made up of cells. ये जो आपने हायरार्की पढ़ी है आगे 9th स्टैंडर्ड से शुरू हुई थी, एम आई करेक्ट और नॉट? 9th स्टैंडर्ड से ये शुरू हुआ है आपका. अभी भी 12th में भी मैं रिपीट कर रहा हूं आपको. इसको मैं बोलूंगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. चैप्टर नंबर 4 में आया था.
कि क्लासिफिकेशन में इसका यूज होता है, एनिमल क्लासिफिकेशन में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। कुछ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी में ऑर्गन लेवल का होता है, किसी में ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। याद आ गया? राइट, ऑल राइट। सो ये स्ट्रक्चर को मैंने दिखाया है आपको, ये स्ट्रक्चर है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, टिश्यू इज स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ऑर्गन इज स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ऑर्गन सिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। वो जो करेंगे, से फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम, for what reason your respiratory system is given to you? Process of respiration, correct? Digestive system, digestion. Circulatory system, circulation. Movement के लिए ये you have muscular system, you have skeletal system. So you have varieties of the system for particular role and responsibility to shared for. तो ये है उसका फंक्शन, ये है स्ट्रक्चर, ये है फंक्शन। कोई भी चीज आप बायोलॉजी में पढ़ो, ये दो ही पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हो उसको, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये रूल है बायोलॉजी, अनटोल्ड रूल है ये। रेडी? से फॉर एग्जाम्पल आप अपनी 18th और 19th चैप्टर, 18th चैप्टर देख लो आप, न्यूरॉन पर। न्यूरॉन में आपने पढ़ा किया था कैसे वो इंपल्स को पास ऑन करता है जनरेट करके, तो वो तो उसका काम है। पहले स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद काम पढ़ा, तो वही दोनों है ऑलवेज। कोई भी बायोलॉजी का कॉर्नर ले लो पूरे वर्ल्ड में, ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको समझना है उसको, राइट? अब मैं अगर बात करूं, से फॉर एग्जांपल, अब आपको समझना है, मैं अलग ही एंगल से आपको समझा रहा हूं ये पूरा सिस्टम। मैं ये बोलता हूं कि मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम ने डाइजेशन का काम किया। डाइजेशन इज द प्रोसेस। करने वाली सिस्टम है वो ऑर्गन सिस्टम है, जिसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है मेरे बॉडी के अंदर। रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन कर रहा है, उसका एक लंग्स है, विंड पाइप है, दिस दैट, वो सब है मेरे पास, आपके पास, सबके पास। वो एक पर्टिकुलर काम कर रही है। बट इफ यू थिंक वाइजली, respiratory system works only when their organs are working. So actually our organ system is not working. Working components are organs, right? अगर ये बंद रख दूंगा तो लंग्स क्या करेगा? उसको तो खुला रख के तो ही मैं बात करूंगा ना। इनहेलेशन एक्सहेलेशन के लिए एंट्री एग्जिट पॉइंट तो खुला रखना पड़ेगा ना मुझे। सो नोज है एक्टिव तो ये पूरा प्रोसेस है। ऑर्गन करते हैं ना काम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन के बगैर कोई काम का नहीं है। में काम एक्चुअली ऑर्गन करते हैं। ऑर्गन कैसे करता है? से फॉर एग्जांपल डाइजेशन में स्टमक जो चर्निंग का काम करता है, फूड को चर्न करने का, एसिड उसमें मिक्स करने का, तो कौन चर्निंग कौन करेगा? What is the structure inside the stomach which is responsible for movement, churning movement? 10th में आया होगा, 11th में तो निकल गया है चैप्टर शायद। चलो हार्ट को ले लो। हार्ट में पंपिंग कौन करता है? हार्ट इज एन ऑर्गन, पंपिंग उसका काम है। हार्ट का पंप कौन करता है? यस, पूछ। सर मसल्स आर टिश्यू, मसल्स आर टिश्यूज। सो एक्चुअली ऑर्गन काम नहीं करते, काम कौन कर रहा है? टिश्यू। तो when you are thinking actually कि your organ system is working, actually organ systems are not working. Organs are working, but when you think about organ, the tissues are working. What tissues are made up of? So actually कौन काम कर रहा है? Ultimately
दिस इज अ यूनिट ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो, करना तो अल्टीमेटली सेल को ही है। HCl, से फॉर एग्जाम्पल, मैंने जिसके बारे में बात की थी आपको अभी, चर्निंग के प्रोसेस में HCl जो मिक्स होता है, तो HCl प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं लंग्स, सॉरी स्टमक की इनर जो वॉल होती है उसके अंदर। सो वो सेल प्रोड्यूस करते हैं HCl, सिक्रेट करते हैं HCl। सो अल्टीमेटली तो सेल को करना है वो काम। मसल सेल से बने, यू नो इट बेटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, सेल टिश्यू, एनिमल टिश्यूज के अंदर आपको आया होगा मस्कुलर टिश्यू, करेक्ट और नॉट? सो मस्कुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ मस्कुलर सेल्स। तो एक्चुअल में सेल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सेल रिलैक्स होते हैं, सेल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सेल रिलैक्स होते हैं, तो मसल रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हमारी मूवमेंट के लिए एक्चुअली तो मस्कुलर सेल्स को ही काम करना है। तो काम अल्टीमेटली कौन करेगा? सेल्स। अंडरस्टूड? तो ये पूरा कट, कॉपी, पेस्ट अल्टीमेटली सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शन यहां पे भी होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन यहां पे भी होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन टिश्यू भी करती है, बट अल्टीमेटली ट्रूली काम करता है कौन? सेल्स। तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हर एक जगह पे होनी है, हर एक लेवल पे होनी है। सो ये सब यहां से लेके यहां तक, ऑर्गन सिस्टम से लेके टिश्यू तक, मैकेनिज्म अलग है, एंड सेल जो है वहां पे मैकेनिज्म अलग है। अब मैं मैकेनिज्म में आता हूं दोनों की, राइट? सेल इज डूइंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, मैं यहां पे हूं, सेल इज डूइंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। से फॉर एग्जाम्पल अमीबा, स्टैंडर्ड 10, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्यूडोपोडिया, राइट? फूड पार्टिकल, एनगल्फिंग, फूड इनटेक, खाना खा लिया उसने, सो फिजियोलॉजिकल फंक्शन हुई कि नहीं? सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सिंगल सेल डज द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो सिर्फ एक ही प्रोसेस करेगा वो? क्या वो रेस्पिरेशन नहीं करेगा? क्या ग्लूकोज उसके अंदर नहीं जाएगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर ग्लाइकोलाइसिस क्या नहीं करेगा वो? अंडरस्टूड? सो वो रेस्पिरेशन है। सो जब वो डाइजेशन कर सकता है तो वो रेस्पिरेशन करेगा। स्यूडोपोडिया सिर्फ एनगल्फिंग के लिए होता है? नो, स्यूडोपोडिया से तो वो लोकोमोशन भी करेगा। लोकोमोशन इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो हर एक सेल फिजियोलॉजिकल फंक्शन करता है। आई रिपीट, हर एक सेल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करता है। ट्रू फिजियोलॉजिकल प्रोसेस यहीं पे होती है। जब ग्रुप ऑफ सेल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं तो व्हाट यू सी एंड व्हाट यू डू नॉट सी, अब उसके बाद उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। सेल कैसा है? माइक्रो स्ट्रक्चर है। सेल कैसा है? माइक्रो स्ट्रक्चर है। हम उसको खुली आंख से देख नहीं सकते, उतना छोटा सा है बेचारा। अब उसको फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस करना है तो वो जिस लेवल पे करेगा, जिस लेवल पे करेगा, वो लेवल को मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए। इट इज इंट्रा सेल्यूलर लेवल, राइट? और ये तीनों जो करेंगे ना, ये तीनों, उसके लिए मैं वर्ड लिख रहा हूं एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेवल। तो जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस
ऑर्गन सिस्टम में होती है, ऑर्गन में होती है, टिश्यूज में होती है, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेवल बोलते हैं उसको हम। उसका लेवल जो होता है वो सेल के बाहर होने वाली प्रोसेस है जो आपको दिख रही है। व्हेन यू आर चिविंग द फूड, यू सी चिविंग द फूड, राइट? If it is churning the food, you feel that your stomach is churning the food. If you put stethoscope and observe, try to observe, you will literally feel the churning sensation. So it is very obvious that it is physical process. This is very important phenomena what I am right now presenting in front of you. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्मिनोलॉजीज है, ये कॉन्सेप्ट्स है, ये आपके सोचने का तरीका ही बदल देने वाले हैं बायोलॉजी को, राइट? एकदम अलग ही डायमेंशन में आप सोचना चालू कर दोगे इसके बाद, जब एट द एंड ऑफ द ईयर, व्हाट आई मीन, अभी नहीं, एक लेक्चर में आप साइंटिस्ट नहीं बन जाओगे, डोंट वरी, राइट? है ना? सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेवल जो होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेवल, जो आप फिजिकल प्रोसेस जो आप देख सकते हो, मींस लोकोमोशन, तो आप एक जगह से दूसरी जगह गया कोई एनिमल देख सकते हो ना, पहले यहां खड़ा था अब यहां है, दैट इज फिजिकल प्रोसेस। जो आप नहीं देख सकते हो, इतनी माइक्रो लेवल पे होती है, देख भी नहीं सकते हो, वो हमेशा प्रोसेस नहीं कहा जाता उसको, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन। रिएक्शन जो मोलेक्यूलर लेवल पर होती है, माइंड इट वेरी वेल, ये फिजिक्स के फिनोमिना है, ये केमिस्ट्री के फिनोमिना है, इनसाइड द बायोलॉजी। कोई सब्जेक्ट सेपरेट है ही नहीं बेटा। आपको केमिस्ट्री चाहिए अगर बायोलॉजी सीखना है तो, आपको फिजिक्स चाहिए अगर बायोलॉजी सीखना है तो, ये फिजिक्स के प्रोसेस है, ये केमिस्ट्री के प्रोसेस है। यहां पे माइक्रोस्ट्रक्चर है तो डेफिनेटली मोलेक्यूलर लेवल पे उसको, इट हैज टू हैपन एट मोलेक्यूलर लेवल। When it is happening at the molecular level, they are reactions. And when it is reaction, it must be chemical reaction. तो ये जब होगा ना, तो ये chemical reaction होता है। So to happen each and every physical process, you need to have chemical reactions. केमिकल रिएक्शन होंगे कहां पर? इंट्रासेल्यूलर, सेल के अंदर होते हैं। आउटकम क्या है? फिजिकल प्रोसेस, यानी कि आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं, इट इज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हाटसोएवर हैपनिंग आइदर इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। केमिकल रिएक्शन का ही रिजल्ट है प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल यानी कि फिजिकल प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस का रिजल्ट है। केमिकल रिएक्शन को हमने मेटाबॉलिज्म बोला था आगे, चैप्टर नंबर 9, किसको याद है? राइट? सो मेटाबॉलिज्म अल्टीमेटली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आपकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका स्ट्रक्चर, उसको मेंटेन करने के लिए आपको रिएक्शंस करने होंगे। तो आपका स्ट्रक्चर, उसको चलाने के लिए अंदर जो करना पड़ेगा प्रोसेसेस, वो केमिकल होगी। आपका स्ट्रक्चर फिजिकल है, आपकी रिएक्शंस जो है वो केमिकल है। ये एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको अभी समझ के याद रखना है, परमानेंट मेमोरी के अंदर स्टोर कर देना है। एम आई वेरी करेक्ट? ये पूरा हियरार्की आपको समझ में आ गया है परफेक्टली, तीनों को, है ना? गुड, ऑल राइट। अभी मैं केमिकल रिएक्शंस एंड फिजियोलॉजिकल, यानी कि मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के इंटर कोरिलेशन को आपके सामने रखा है कि अगर मेटाबॉलिज्म होता है तो ही आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रही है, इट हैज टू हैपन ओनली बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्स ऑफ योर बॉडी। सो ये पैरामीटर है पहला जो हमें समझना है। तो आपका स्ट्रक्चर, आपका फंक्शन, आपका स्ट्रक्चर, आपका फंक्शन, दोनों अलग अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो एक ही
बॉडी पार्ट के साथ अटैच्ड है। स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन। थम्स अप। स्ट्रक्चर, फंक्शन, राइट। सो ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमने को रिलेट करना है विद द नेम ऑफ दिस चैप्टर। तो हमें हेरिडिटी में एक्चुअल में समझना क्या है, ये जो हमारे कैरेक्टर हैं, वो जो हमें मिले हैं, जो हमारे पेरेंट्स में से मिले हैं, कैसे उसका फ्लो होता है, हाउ इट इज गेटिंग फ्लोन, हाउ इट इज गेटिंग फॉरवर्डेड फ्रॉम जनरेशन टू दी जनरेशन। वो पूरा मैकेनिज्म हमें जेनेटिक्स के अंदर सीखना है, प्लस उसका स्ट्रक्चर कि जेनेटिक मटेरियल होता कैसा है, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस टाइप का होता है और कैसा उसका बिहेवियर होता है। तो वहां से हम एक्चुअल में ये गाड़ी अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। जिसने हमारे सामने ये पूरा साइंस इंट्रोड्यूस किया है वो है सर ग्रेगर मेंडल, राइट। एंड द rules and regulation whatsoever we are studying right now in this chapter, it is addressed as Mendel's law of inheritance. फाइन, इनहेरिटेंस की प्रोसेस है, उसको समझाने के लिए जो भी एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किए हैं उसके हिसाब से उन्होंने कुछ रूल्स को पोस्टुलेट करके हमारे सामने रखे हैं। वो सब लॉज के बारे में भी हमें धीमे धीमे जान के जैसे जैसे आगे आएंगे वैसे वैसे हम क्लियर करते जाएंगे। ओके, बिफोर वी गेट्स इनटू द सब्जेक्ट, ट्रूली जेनेटिक्स के अंदर अगर हम जाते भी है तो उसके पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी सीखना है। मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए हैं, लेकिन आपके सामने अभी मैंने जो रखा है वो कुछ टर्मिनोलॉजीज है, राइट। उस टर्मिनोलॉजीज को हम वन बाय वन, वैसे तीन पहली टर्मिनोलॉजी तो मैंने ऑलरेडी आपके सामने रखी हुई है। जेनेटिक्स किसको बोलेंगे? स्टडी ऑफ हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स, राइट। अब इनहेरिटेंस क्या है? उसमें हेरिडिटी के अंदर मैंने दो एरोज करके दो ऑप्शन दिए थे आपको हेरिडिटी में। एक था इनहेरिटेंस, एक था वेरिएशन, जो आपके चैप्टर का एक्चुअली नाम है। सो उसमें पहला मतलब इनहेरिटेंस का क्या होगा? इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। एक जनरेशन है, वो अपने कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जो फॉरवर्ड करती हो, फॉरवर्ड का मैकेनिज्म है, उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस, राइट। सो इट इज अ स्टडी विच इज अ बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का बेस है इनहेरिटेंस। हेरिडिटी क्या है? स्टडी है किसका? इन दोनों का, राइट। इन दोनों का स्टडी हेरिडिटी है। हेरिडिटी का मेन पार्ट कौन सा है? इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस क्या है? वो फ्लो है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग टू नेक्स्ट जनरेशन। वो जो फ्लो है वो फ्लो इनहेरिटेंस है। वेरिएशन, जब एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में जा रहा है तो उस पाथवे में उसमें चेंज जो भी आता है, चेंज, उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। चैप्टर नंबर 10, मियोसिस ब्रिंग्स द चेंजेस, द वेरिएशन, याद आ गया? सो वो वेरिएशन की यहां पे बात है। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन में जब कैरेक्टर गया तो उसमें थोड़ा सा चेंज है। यू आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू योर पेरेंट्स, एट ऑल नॉट, आई मीन व्हाई? बिकॉज ऑफ वेरिएशन। इट इज द बेस ऑफ with respect to, say for example, again higher organism की बात करें, so they are usually sexually reproducing, right? They are usually sexually reproducing organism. But अगर मैं बात करूं lower animals की या lower organisms की, let us undefine it. Say for example bacteria,
right? Say for example, algae, porifera kind of animals, lower category of plant, lower category of animal, all the unicellular organisms, they reproduce mainly by asexual reproduction. So they are asexually reproducing organisms. All right. When you know, variation is brought by meiosis, that is very much right. Only meiosis can bring about the changes. Variation अगर चाहिए आपको तो ऑर्गेनिज्म को मियोसिस करना कंपलसरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना कंपलसरी है, राइट? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंपलसरी है वेरिएशन के लिए. It doesn't actually changes. Asexual reproduction does never change the character, but you do not have single type of bacteria. You have n types of bacteria. You do not have single type of algae. You have many different types of algae, different type variation, different type variation. Look at the magic what I am saying. When you are saying they are asexual reproduction, then also they have some variation. What can you think now by yourself, because you have already studied them? You have studied Monera, you have studied algae, you have studied fungus, you have studied lower cadre of plants and animals both. So what do you think, why those variations have or might have been produced? कैसे वो produce हुए होंगे into the nature? ये रूल है, ये रूल है, उस रूल को हम ब्रेक नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है, फिर भी उसमें वेरिएशन तो है ही. वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट इज. बोलिए बेटा. सर हाँ उसमें ना वेरिएशंस दिखते हैं क्योंकि है ना अडेप्टेशन करने के लिए एनवायरनमेंट में. ओके गुड. पूछ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर वो भी मियोसिस तो करते ही होंगे ना, तो सर होंगे 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 से ज्यादा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कब, कैसे और क्यों. दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. अहमदाबाद. ओके, डू रिमेंबर, ये जो है लोअर कैडर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स या मोनेरास या प्रोटिस्टा, लोअर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, उसका मेन चीफ मेथड है सेक्सुअल. इट डज नॉट मीन कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, राइट? ये कब करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करेंगे? ड्यूरिंग देयर फेवरेबल कंडीशन. जब उसको फेवरेबल कंडीशन है उसके पास, तब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे. जब उसका सराउंडिंग अनफेवरेबल हो गया, हार्श हो गया, नॉन लिवेबल हो गया, फिर भी उसको जिंदा रहना है, पॉइंट टू बी नोटेड, उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, सूटेबल नहीं है, लेकिन उसको खुद को बदलना पड़ेगा अगर एनवायरनमेंट के हिसाब से चलना है तो. एम आई करेक्ट और नॉट? बदलना है मतलब वेरिएशन लाना है. वेरिएशन लाना है तो मियोसिस करना पड़ेगा, और मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है.
कब करेगा? जब उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में, बट जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता है, तब उसको करना पड़ेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मजबूरी में, क्योंकि उसको चेंज करना है खुद का कैरेक्टर। सो दैट्स द की पॉइंट व्हाट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड एक्चुअली, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जन्म हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं हुआ है, यहां पे होके हेरिडिटी में मिला है इनको। लेकिन उन्होंने क्या किया? उसी को अपना लिया। दे डू नॉट डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हायर ऑर्गेनिज्म की बात करो तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट? इवन फ्लावरिंग प्लांट डू नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। एम आई वेरी करेक्ट और नॉट? क्योंकि उसको वो बहुत ही छोटा, से फॉर एग्जांपल कोई मर्सिडीज चलाने वाला है, उसको वो फिर थोड़े ही ना साइकिल पे आएगा यार, नहीं आ सकता है ना वो। सिंपल सा लॉजिक है। उसके पास है तो वो क्यों नहीं यूज करे मर्सिडीज? तो इन लोगों के पास मर्सिडीज आ गई है, अब उसको साइकिल की जरूरत नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। सो इट इज हाईली एडेप्टेबल। दीज सर्विसेज, दिस फेनोमेना इज हाईली एडेप्टेबल फेनोमेना। यहां पे क्या है? कंडीशंस के हिसाब से होता है। ये क्या है? शेर भूखा सो जाएगा, घास नहीं खाएगा, ये वाली कंडीशन है। होता है तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूशन ठीक करेगा, एसेक्सुअल नहीं करेगा, रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, बाकी एसेक्सुअल तो नहीं करेगा, दैट इज फॉर श्योर। सो ये जंगल का राजा हो गया। वी आर डोमिनेटिंग एनिमल्स, एंड ये बेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इसको इतना ज्यादा पॉपुलेशन में होना है, इनकी पॉपुलेशन इतनी ही होनी चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए, ये पॉइंट समझना है। कभी जंगल के अंदर जितने कीड़े मकोड़े होते उतने शेर, उतने चीते नहीं होते। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी आप ऊपर जाओगे, जितना कॉम्प्लेक्सिटी में ऊपर जाओगे, उतना नंबर रिड्यूस होता जाएगा। जितना आप सिंप्लिसिटी में नीचे आओगे, उतना नंबर बढ़ता जाएगा। दिस इज रूल ऑफ नेचर। दिस इज रूल ऑफ नेचर। फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने सारे सब्जेक्ट आते थे, 12th इतने से रह गए 3 सब्जेक्ट, है ना? आइदर ए ग्रुप में 3, बी ग्रुप में 3, जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। डेप्थ की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर्स की बात कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, नंबर्स की बात कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्स होता है, नंबर कम होता है। सिंपल होता है, नंबर ज्यादा होता है। रूल हर एक जगह पे सेम है। आपके डेली रूटीन लाइफ के एग्जाम्पल में भी यही रूल लागू होता है, नेचर में भी यही रूल लागू होता है, जो मैंने आपको समझाया। सिंप्लिसिटी मोर, कॉम्प्लेक्सिटी लेस। सिंपल। कैरेक्टर्स अगेन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दीज आर कैरेक्टर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात मैंने आपके सामने रखी, विच आर ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस, व्हाट आई मीन। सो हम जब हेरिडिटी की बात करेंगे ना, तब फोकस हम यहां पर करेंगे चेंजेस के बारे में, बिकॉज इनहेरिटेंस के साथ वेरिएशन अटैच्ड फिनोमेना है, राइट? वो अटैच्ड फिनोमेना है। तो एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में जब हम फ्लो करते हैं, तब 2 चीज होती है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस जस्ट कैरी फॉरवर्ड, वेरिएशन कैरी चेंज फॉरवर्ड, कैरी चेंज फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड इनहेरिटेंस, कैरी चेंज फॉरवर्ड वेरिएशन। सिंपल। थम्स अप कर दीजिए फटाफट। So that's the basic difference between these 2 processes of heredity. Okay. मैं वापस यहां पे आ जाता हूं जहां पे था। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को मैंने अलग ही एंगल से आपके सामने रखकर समझाया है मैंने, है ना? अब मैं बात कर रहा हूं ये 2 वर्ड्स की। एक है कैरेक्टर और एक है ट्रेट। कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स।
फाइन, मैं स्टैंडर्ड 10 में वापस जाता हूं, राइट? आपको कुछ ऐसा समझाया होगा, कैपिटल टी जो देता है टॉल प्लांट. आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट. ओके. स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट. एंड कैपिटल टी, स्मॉल टी, अगेन टॉल प्लांट. ऐसा कुछ आपके सामने उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट में आया होगा, है ना? ओके. यहां पर जिसके बारे में बात हो रही है वो कैरेक्टर का नाम है ये कैरेक्टर है हाइट ऑफ प्लांट. आइदर इट इज टॉल और इट इज शॉर्ट, ड्वार्फ. क्लियर? यस और नो? सो ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, आइदर टू बी टॉल और टू बी ड्वार्फ, इसको मैं बोलूंगा ट्रेट. ट्रेट्स. तो कैरेक्टर है ये हाइट, ट्रेट्स है उसका एक्सप्रेशन टॉल और ड्वार्फ. सो आइदर प्लांट बीइंग अ टॉल or plant being a dwarf is its trait, and trait is expression of the character. So you have two types of expression, either to be tall or to be dwarf. You have either option. दो ऑप्शन है आपके पास. एक्सप्रेशन दो है, ट्रेट्स दो है, कैरेक्टर एक है. हाइट इज अ कैरेक्टर, एक्सप्रेशन दो है उसके, ट्रेट दो है उसके. आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस, है ना? ओके. So that way it has been defined here. The character, a heritable feature amongst the parents and offspring is character. Example, eyes color. अब trait क्या है? Variation of that same character. उसी character, eye color है, eye of color, उसका variation देखो, brown भी हो सकती है, black भी हो सकती है, राइट? ब्लू भी समटाइम्स हो सकती है अगर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जाओ तो. सो ये वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टर है. ब्राउन आईज, ब्लू आई, या ब्लैक आईज, तो वो वेरिएशन है. वेरिएशन को क्या बोलेंगे? ट्रेट. कैरेक्टर का जो वेरिएशन है, एक्सप्रेशन का जो वेरिएशन है. सो ट्रेट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर. क्लियर? ऑल राइट. चलो, इसमें अगर कोई वर्ड में आपको डाउट है, नहीं समझ में आया या रिवाइज करना है, ऑल राइट. अब ये तीन और वर्ड थोड़े से आप कह रहे बीक लगे हुआ है, डरावने काइंड ऑफ थिंग्स, एलील्स और एलिलोमॉर्फ, होमोजाइगस, heterozygous, etc. बट अगर मैं इसके अंदर घुसूं, उसके पहले मेरा एक बैकग्राउंड जो ट्रांसपेरेंटली क्लियर होना चाहिए, तो मैं वहां से आपके पास जाऊंगा. पहले मैं उस बैकग्राउंड को आपके सामने रखता हूं जो आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. तो उस बैकग्राउंड से मैं स्टार्ट करता हूं. से फॉर एग्जांपल, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, राइट? जिसका पूरा बॉडी बना है सेल्स से. किससे बना है? सेल्स. फाइन. इसमें तो किसी को कोई डाउट हो ही नहीं सकता है, अभी हमने एक्सप्लेनेशन करा था उसका. ऑलराइट. ये सेल्स में पूरे हमारे मिलियंस एंड मिलियन सेल्स से हम बने. कोई भी एक सेल ले लेता हूं आपकी बॉडी में से, मेरी बॉडी में से. स्किन का सेल मैंने ले लिया. स्किन के सेल के अंदर मैंने निकाला है न्यूक्लियस को.
चैप्टर नंबर 8 में हूं मैं अभी। सेल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मुझे एक स्पेसिफिक टाइप का मटेरियल मिलता है, जिसको मैंने नाम दिया है जेनेटिक मटेरियल। कॉमन नेम है जेनेटिक मटेरियल। लेकिन इसका एक साइंटिफिक नाम भी है। जेनेटिक मटेरियल को वहां पे चैप्टर नंबर 8 के अंदर क्या नाम दिया गया है? बोलो भूजवाड़े भाई। सर क्रोमोसोम्स। नो, बोलो। क्रोमैटिन सर। ओके, दैट्स राइट। मैं जो भी आपको अभी समझा रहा हूं ना, ये परमानेंटली स्टोर करके रखना है ब्रेन के अंदर। योर सेल्स न्यूक्लियस आर हैविंग क्रोमेटिन, नॉट क्रोमोसोम। प्लीज डू रिमेंबर दिस, नॉट द क्रोमोसोम, क्रोमेटिन्स यू आर हैविंग, राइट। ये जेनेटिक मटेरियल या तो ये क्रोमेटिन, ये एक नाम है उसका, उस स्ट्रक्चर का नाम है जो उसके अंदर है, फिजिकल नाम है उसका। ये उस वो चीज, वो सब्सटेंस का नाम है, वो मटेरियल का नाम है जेनेटिक मटेरियल। अगर मैं उसके मोलेक्यूलर स्ट्रक्चर पे जाऊं, उसकी केमिस्ट्री में अंदर जाऊं कि वो किस मटेरियल से बने हैं, केमिकली वो क्या है, केमिकल नाम उसका क्या है, किसी को पता है? जेनेटिक मटेरियल केमिकली कैसे होते हैं? देखिए ये वर्ड भी आ गया है आपकी बुक में, 11th में हमने पढ़ लिया है, काफी सारे टाइम्स ये रिपीट हुए हैं। लिख देता हूं आपके लिए, आपको समझ में आ जाएगा। इट इज केमिकली न्यूक्लियोप्रोटीन्स। क्या होता है वो? न्यूक्लियोप्रोटीन्स होता है। क्यों उसको न्यूक्लियोप्रोटीन्स बोला है, क्यों उसको न्यूक्लियोप्रोटीन ही नाम दिया है? क्योंकि न्यूक्लियो वर्ड आया है न्यूक्लिक एसिड में से। इसको तो आप शायद पहचानते ही होंगे। न्यूक्लिक एसिड चैप्टर नंबर 9, मैंने बोला था जब तक मरोगे बायोलॉजी के साथ तब तक चैप्टर नंबर 9 आपको नड़ने वाला है। तो जहां जाओगे, तू जहां जहां जाएगा मेरा साया साथ होगा। ये गीत न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स मींस बायोमोलिक्यूल्स ने गाया है। राइट? तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, राइट? तो इसके साथ प्रोटीन्स है, तो न्यूक्लिक एसिड्स भी है और प्रोटीन भी है, उसके कॉम्बिनेशन से बना, इसलिए उसको न्यूक्लियोप्रोटीन्स बोलते हैं। चलो इसी में किसी को कोई डाउट है ये जो मैंने समझाया अभी? ऑलराइट, अब हम जाते हैं उसके पास कौन से टाइप के न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड मटेरियल उसके पास है। किसी को है पता कौन सा हो सकता है ये 2 टाइप? आइडिया, कुछ गेस्चर? इफ यू वांट टू मेक अ गेस, व्हाट वुड यू गेस हियर? 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स, कम ऑन, चैप्टर नंबर 9 में आ चुके हैं ये। pyridine and purine. नो, वो नाइट्रोजन बेस के 2 टाइप से, न्यूक्लिक एसिड्स के नहीं। कोई नहीं। यस, पूछ। पेरिडीन एंड थायराइड। यहां से मैं N ले लेता हूं, यहां से मैं A ले लेता हूं। N A न्यूक्लिक एसिड। चलो हिंट दिया,
फ्यूचर डॉक्टर 3 जो मेरे सामने बैठे हैं, नीट देने वाले हैं। सर, यस, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। राइट आंसर। डॉक्टर का सजता दिया तो आ गया, है ना। याद करवाना पड़ेगा कि आप डॉक्टर बनने वाले हो, तो ये धीरे धीरे याद आने लगेगा सब। सो इट इज आइदर डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड और रिबोन्यूक्लिक एसिड, 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स है उसके अंदर। बट अगर मैं 2 में से मेन कौन है उसकी बात करूं, मेन तो वो ये है भाई। ये मैं हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूं, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहा हूं, राइट। प्रोटीन भी 2 टाइप के होते हैं यूजुअली। अब यहां पे मैं आपको पूछूंगा तो आप क्या नाम लोगे मुझे पता नहीं है, बट पता है, बोलो। हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। ग्रेट, गुड आंसर। इट इज हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। हिस्टोन इज चीफ अमंग्स देम। तो एक्चुअल में न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर ये कॉम्बिनेशन होता है, डीएनए एंड हिस्टोन का कॉम्बिनेशन होता है। ये हेल्पर है, ये भी हेल्पर है, ये दोनों हेल्पर है। मेनली योर न्यूक्लिक और जेनेटिक मटेरियल chromatin is composed of DNA and histone. Okay, one step ahead. समझते 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 हम यहां पे डीएनए के पास आए अभी। अब हम डीएनए के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, खुद का नॉलेज वर्सेस एक्चुअल फैक्ट। आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ फीड होगा अबाउट डीएनए। एक्चुअल फैक्ट देयर आर मेनी अबाउट डीएनए। हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं। सो लेट अस बिगिन द स्टोरी ऑफ डीएनए नाउ। आपका सेल, पॉइंट टू बी नोटेड, आपका सेल, उसका न्यूक्लियस, उसके अंदर डीएनए, नंबर कितने हो सकते हैं? 1 2 4 5 10 15 20 25 1000 2000, कितने? हाउ मेनी डीएनए योर सेल माइट बी हैविंग according to your point of view? If you are diploid organism, that is 2n, human, that is carrying 23 pairs of chromosomes. Very surprising question, isn't it? ये तो कभी सोचा भी नहीं था, सोचा नहीं था तकदीर यहां लाएगी, मंजिल से पहले ही जान चली जाएगी। सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है, हाउ मेनी डीएनए might be present, actually is present into the nucleus of your cell in the number? Okay, let me go to chapter number 10, cell division. Cell division. G1 S, G2 M. Interphase, mitotic division phase. Number 1, prophase. Number 2, metaphase. Number 3, anaphase.
Number 4, telophase. So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stage here. Out of 7, which is the stage where you can see the chromosome clearly under the microscope? Bhuj. सर मेटाफेज। Sir, metaphase, right. Means chromosome कब बनेंगे? During prophase. बनेंगे कब? प्रोफेज में। दिखेंगे कब? मेटाफेज में। तब तक तो वो होते ही नहीं है, यहां पे क्रोमोसोम है ही नहीं। योर जीवन डू नॉट हैव और डू नॉट कैरी क्रोमोसोम, इट कैरीज क्रोमेटिन, राइट। भले ही वो चैप्टर के अंदर वहां पे डायग्राम में आपको क्रोमोसोम ही दिखाए गए हैं, होते नहीं है। वो आप समझ सको इसलिए स्ट्रक्चरली क्रोमोसोम दिखाए शायद गए हो, या तो इन फ्यूचर भी हमें जब इसकी हिस्ट्री के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं तो तब मैं उसको डायग्राम के अंदर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्रोमोसोम दिख रहे हैं, होते नहीं है, वो समझने के लिए दिखाया, रिप्रेजेंटेशन है वो। फाइन। तो क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है प्रोफेज में, एन क्रोमोसोम बनने हैं। वो तब बनेंगे जब उसको डिवाइड होना है, जब उसको डिवाइड होना है तब, अदरवाइज वो नहीं होते हैं। तो क्रोमोसोम कितने बनेंगे? नंबर। अब आई आपकी बारी। 46 46। 23 पेयर्स। तो 23 पेयर ऑफ डीएनए चाहिए ना आपको, तब 23 पेयर क्रोमोसोम बनेंगे। जितने क्रोमेटिड होंगे उतने ही क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन में से क्रोमेटिड बनते हैं, तो क्रोमेटिड के जितने नंबर होंगे उतने ही क्रोमेटिन के होने चाहिए ना। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर ये है 23 into 2 means 46 is the number of DNA present into your cell. ये नीट का क्वेश्चन होता है। अंडरस्टूड? आपको लगेगा कोर्स के बाहर का क्वेश्चन है, ऐसा कहीं पे है ही नहीं, लेकिन कोर्स को आपको को रिलेट करना है, तब जाके आप उसको समझ पाओगे। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मींस, है ना। फाइन, आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। सो यू हैव डीएनए। डीएनए को अभी मुझे डिफाइन करना है, चलो, राइट। डीएनए को अगर मुझे डिफाइन करना है तो ये इसकी लॉजिकल डेफिनेशन है। किसकी? डीएनए की। इट इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस ऑफ सेल, राइट, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेरिडिटी, ब्रिंग्स अबाउट इनहेरिटेंस, ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन, दोनों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो ये डीएनए को मैंने एक्सप्लेन करा है। किसको एक्सप्लेन करा है मैंने? डीएनए को। मेरा हेडिंग यूनिट का, यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट। हम जो यूनिट के बारे में अभी बात कर रहे हैं वो यूनिट नंबर है 7, जिसका नाम है जेनेटिक्स। नाम है जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन। जेनेटिक्स का अकॉर्डिंग टू नाम जो मीनिंग होता है वो ये होता है, स्टडी ऑफ जीन्स। अब हमें ये नहीं पता है जीन्स क्या है, जीन्स क्या है उसकी डेफिनेशन हमें नहीं पता है ना, या मे भी क्लियर नहीं है। नाम पता है हमको, बार बार नाम हम यूज करते हैं शायद जीन्स का, पहनने वाला जीन्स नहीं, जेनेटिक्स वाला जीन। फिर भी उसका ट्रू सेंस
का जो लॉजिकल मीनिंग है उसके बारे में हमें अभी डिस्कशन करना है, राइट? मुझे अभी उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो डीएनए को हमने समझा, अब मैं बात करता हूं उसके जीन्स की। से फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऑर्गेनिज्म को जब मैं व्हेन आई एम थिंकिंग ऑफ ब्रायोफाइट, से फॉर एग्जाम्पल एक्स मार्केंशिया, तो उसके नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक काफी सारी लिस्ट बनेगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, आपको पता हो या ना। लेकिन व्हेन आई स्टार्ट स्टडिंग इट, I'll be having a list of characteristic feature of the same organism. Is it very clear? Right? Okay. So मुझे जीन्स क्या है उसके बारे में अगर कॉन्सेप्टली जाना है, उसको ट्रूली समझना है, ट्रू सेंस में समझना है, तो मुझे डीएनए के पास पहले पहुंचना पड़ेगा। डीएनए जो है वो कैरेक्टर को एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में लेके जाता है, वो मटेरियल है जो ऑलरेडी हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इनहेरिटेंस का जो मटेरियल है वो डीएनए है, बट यूनिट जो है ना वो जीन्स है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज अ जीन, मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस इज डीएनए। तो डीएनए का ही सेगमेंट है जीन। ओके, डीएनए के बारे में आपको वॉटसन एंड क्रिक ने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ाया है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, किसको नाम याद है? याद आ गया? ओके, सो वो जो नाम है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इट इज अ वेरी लॉन्ग पॉलीमर, right? Point to be noted. DNA is very long polymer of न्यूक्लियोटाइड। और एक इंटरेस्टिंग सी बात आपके सामने रख रहा हूं मैं, ह्यूमन में कैरेक्टरिस्टिक फीचर का नंबर 30,000 है। से फॉर एग्जाम्पल कितनी? 30,000। नंबर ऑफ डीएनए कितने हैं? 46, मींस 23। 46 तो पेयर है ना, तो एक्चुअल नंबर तो 23 है। तो 23 क्रोमोसोम, से फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम के लिए मेरे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 30,000। तो एक डीएनए या तो एक क्रोमोसोम में मुझे थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर के लिए उसके छोटे छोटे सेगमेंट को अरेंज करना पड़ेगा। आपके पास अगर मोती की माला है तो वो माला जो है ना वो डीएनए है, और मोती जो होते हैं ना वो जीन्स है। एक जीन एक कैरेक्टर के लिए है, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। आई होप आई एम वेरी क्लियर नाउ विद माला की जो रिस्पेक्ट से अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो पूरे जो मोतियों की माला है वो डीएनए है, और मोती के दाने जो है ना, दाने जीन्स है, जो एक एक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे। उसको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये मटीरियल ऑफ इनहेरिटेंस है और ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, जीन्स। सो दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। comma, a small segment of DNA
responsible for the expression of a particular trait, that is character. So this is a technically arranged definition of the gene. Structural and functional unit of inheritance. Which kind of unit? A small segment of DNA which is responsible for expression of a single particular type of trait of a character. राइट? बहुत ही टेक्निकली मैंने उसको डिजाइन करके आपके सामने रखा है इसकी डेफिनेशन को. राइट? जितना भी हर रोज होता है आपको केयरफुली याद रख लेना है, परमानेंटली स्टोर करना है आपकी ब्रेन के अंदर इनको, है ना, ताकि मिक्सअप न हो जाए. हमें एनकैश करना है मार्क्स को, रोकड़ा मार्क्स लेना है. ये सब ये अग्रे से अग्रा टॉपिक है सब. जेनेटिक्स इज द हार्डेस्ट टॉपिक ऑल ऑफ द बायोलॉजी. मैं इसको ऐसा बना दूंगा आपके लिए पूरा इजी, ये मेरी गारंटी है. आई एम प्रोमिसिंग फॉर दैट कि जेनेटिक्स तो आपको कोई रात को 2 बजे उठा के भी पूछेगा ना तो उसकी डेफिनेशन आप फटफट बोलने लगोगे. राइट? सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड जीन्स. अब डीएनए हेप्लॉइड, आप हेप्लॉइड नहीं हो, यू आर डिप्लॉइड. You are diploid 2n which have 2 sets of DNA. 2 सेट में है आपके पास डीएनए. आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट. 2 सेट में है मेरे पास डीएनए. राइट? क्यों 2 सेट में है? मेरे अंदर मेरी बॉडी में 2 सेट में क्यों है डीएनए? क्योंकि मेरी बॉडी पूरी जिस सेल से बनी है उस सेल का नाम था जाइगोट. वो जाइगोट था 2n जिसमें से बना था एम्ब्रियो, जिसने बनाया था एक छोटे से बेबी को जो आज बना है आपका सर. तो मेरे पास जो 2n डबल है या आपके पास अभी जो 2n, वो 2n का मतलब ये है 2 सेट ऑफ डीएनए है. आपके पास 2 सेट ऑफ डीएनए. कहां से आया ये 2 सेट ऑफ डीएनए? एक आपकी मदर ने दिया है, एक आपके फादर ने दिया है एज अ फीमेल गैमीट. उसके अंदर हेप्लॉइड एन था, याद है? एक फादर ने मेल गैमीट में दिया तो ये n 2n हो गए, सिंपल. ये 2n आपके पास है तो आपके पास 2 सेट में है. कोई भी कैरेक्टर आपके पास 2 है ट्रेट्स. एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट है आपके पास. एक ट्रेट आपके मम्मी ने दिया है, मैटरनल फैमिली में से आया है. एक आपके पापा ने दिया है, आपके पैटर्नल फैमिली में से आया है. अंडरस्टैंडेबल और नॉट? तो आपके कोई एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जीन्स के 2 ट्रेट है आपके पास. एक सेट मैटरनल है, एक सेट पूरा पैटर्नल है. ये सेट ऑफ डीएनए को मैं नाम दे रहा हूं एक, वो नाम है ये जीनोम. शायद कहीं पे नाम सुना हो, अगर नहीं भी सुना हो तो आज सुन लिया. सेट ऑफ हेप्लॉइड डीएनए और क्रोमोसोम या जीन्स, उसको हम बोलेंगे जीनोम. मींस जीन्स का एक सेट सिंगल, उसको हम जीनोम बोलेंगे. जीनोम होता कहां पे है, किस में होता है? गैमीट्स के अंदर होता है नेचुरली.
किस में होता है? गेमिट्स के अंदर। आपके सेल में तो दो है जो मिक्स है, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। सेपरेटेड फॉर्म में कहां पे होता है? गेमिट्स के अंदर होता है। मीन्स अगर मुझे जीनोम का स्टडी करना है तो मैं या तो एग सेल या तो स्पर्म सेल, उसका जो जेनेटिक मटेरियल का स्टडी करूंगा तो मैं जीनोमिक स्टडी कर रहा हूं। डन है ना? ओके फाइन। मैं यहां पे अब स्टॉप कर रहा हूं बिकॉज 4-5 हो चुके हैं, सॉरी 3-5 हो चुके हैं, है ना? अपना 3 बजे तक का ही शेड्यूल है, हर एक दिन का है, सो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, नथिंग टू वरी अबाउट। आसानी से धीरे धीरे इतना केयरफुली समझते समझते आगे बढ़ेंगे, पता भी नहीं चलेगा जब कब आपका जेनेटिक्स खत्म हो जाएगा, है ना? सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हमको आगे और भी बढ़ना है। कल से हम थोड़ा इनटू द सब्जेक्ट जाएंगे। आज मैंने थोड़ा सा जो अपना बेसिक इंफॉर्मेशन से उसके हिसाब से आपको यहां तक पहुंचाने का ट्राई किया है। यहां तक पैर में होते हैं ना, मैंने जो बोला, तो वो जो पैर होती है ना उसको एलील बोलते हैं, राइट? दो है, एक मैटरनल फैमिली में से आया है जीन, एक जीन आएगा पैटर्नल। वो जीन जो आए हैं ना, दो सेट ऑफ 2, तो वो एलील बोलते हैं हम। अगर सेम है तो वो होमोजाइगस है, अगर डिफरेंट है हेट्रोजाइगस है। यहां से मैं फिर से वापस आपको कल से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट? फाइन, चलिए, हैव ए नाइस टाइम एंड आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम।